So hello everyone. So today we are going to discuss about the environment, the Hindu news coverage for the month of June, first week of the June, and that is 1st June to 10th June. So we will cover all the news from the 1st of June to the 10th of June. Okay. So the first news is that is World Environment Day. So we celebrate 5th June as the World Environment Day from since 1974. So why June 5th? Because UNEP is formulated on the same day, that is June 5th, 1972. So exactly after 2 years, means from 1974 we started to celebrate the same day, that is June 5th, as a World Environment Day. Okay, so it is very important to conserve our environment and to uh, spread the awareness about the environment to the all human beings. So that's why we also put the some themes for the particular year, like 2017, 18, or we can say for the every year we put some themes for the whole year. Okay, so for this year, that is for 2020, the theme is the biodiversity. It's time for nature. Okay, so that is the most important thing, because we have to yes, to conserve our nature, or to spread the awareness about conserving nature or the importance of the conserving environment. Or if we do not do so, so we can see the last decade, if we observe some consequences of last decade, so it will show some broken relationship with our nature, more evident than ever before. Okay, so rapidly changing climate, bushfires, melting glaciers, increasing intensity and frequency of floods and droughts, and now locust attack and global COVID-19 pandemic. So these act as a reminder that human health is linked to the planet's health. So that is the most important thing. So we have to conserve our nature on very prior basis. Okay, so exactly what I said, World Environment Day was established 1972 UNEP on the same day. So that's why that is the Stockholm conference is the important thing, कि यहाँ पे Stockholm conference on the human environment, ये आपको important याद रखना है. 1972 में Stockholm convention हुआ था, and वहाँ पे UNEP का formation होता है, and 1974 में फर्स्ट, मतलब आफ्टर 2 years एग्जैक्टली हमने स्टार्ट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना. एंड तब से ही एक थीम हमको दिखती है. तो सो फर्स्ट थीम ऑफ द 1974 वाज द ओनली वन अर्थ. ओके, सो ये थीम थी ओनली वन अर्थ. सो तब से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड मल्टीपल टाइम्स थे, बट सम लास्ट हमें याद रखने चाहिए कुछ थीम्स. दैट इज 2018 का कुछ थीम हमें याद रखना है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. होस्ट होता है एक इंपॉर्टेंट और एक थिंग है यहाँ पे कि एवरी ईयर कोई ना कोई होस्ट होता है. सो 18 एंड 18 में इंडिया होस्ट था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रिगार्डिंग थी थीम उसकी. 19 में एयर पोल्यूशन होस्ट वाज चाइना, एंड इन 2020 biodiversity dash time for nature was the theme. Okay, so that is the important, and host is now the host for the 2020 is Colombia. Okay, so just remember that the host is Colombia in partnership with the Germany. Okay, so Germany is also there. So just remember that Colombia and Germany. So Colombia, यहाँ पे Colombia पे some of the question अगर पूछा जाए तो वो important होगा. So Colombia is one of the largest mega diverse countries in the world and holds close 10% of the planet's biodiversity. So that is the most important कि overall जितने भी world में countries है तो उसमें only means only single country means Colombia 10% biodiversity means hold करता है. Okay, so since it is part of the Amazon rainforest, so why? Because वहाँ पे Amazon rainforest distributed है. So Colombia ranked first in the bird, then orchids species diversity, and second in plants, butterflies, freshwater fish and amphibians. So multiple regions में उनके कुछ numbers है. So that is going to be important कि Colombia regarding और भी biodiversity, मतलब बहुत ही richness biodiversity, so वो एक important point हो सकता है. Okay, so official name यहाँ पे environment day अगर देखा जाए UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऐसे कहा जाता है उसको, और भी कुछ पैरेलल नाम से इको डे इज आल्सो नोन एज द मींस एनवायरनमेंट डे इज आल्सो नोन एज द इको डे, और वी कैन से WED मींस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ओके, सो इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनली, एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है उसका कि एनवायरमेंटल इश्यूज एंड अवेयरनेस स्प्रेड करना. ओके, सो ऑब्जर्वेंस दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, and date also 46 from we are celebrating from 46 year. Okay, so देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट आल्सो कॉल्ड एज स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो ये भी आपको पढ़ना चाहिए. देन स्टॉकहोम स्वीडन, यहाँ पे 5 जून टू 16 जून फर्स्ट 1972 का जो कन्वेंशन हुआ था एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो तब
UNEP एस्टैब्लिश हुआ था. ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो तब से हम एक जनरली आफ्टर 2 years आफ्टर द फॉर्मुलेशन इन 1972, तो उसके बाद हम स्टार्ट किया 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना. ओके, सो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे यूएनईपी का, दैट इज इन नैरोबी, केनिया. ओके, तो फॉर्मेशन 5 जून 1972 एंड उसके हेड इंगर एंडरसन सिंस 2019. ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, सो इंडिया में कैसे सेलिब्रेट किया इसको, सो World Environment Day in India, there is a need. So Prakash Javadekar, which is our minister for the for the Environment Ministry, Minister of Environment, Forest and Climate Change. So the center launches program to increase forest cover in urban areas. So Union Minister that Prakash Javadekar launches a Nagar One or urban forest with 200 cooperation and cities across India. Okay, so that is the important thing कि almost 200 ऐसे कुछ corporations रहेंगे कि वहां पे हम नगर वन या फिर अर्बन फॉरेस्ट ये प्रायर नीड होगी, बिकॉज उनके कुछ स्पीच में उन्होंने ऐसे बोला था कि जैसे विलेजेस में प्रॉपर ट्री कवर है, बट अर्बन एरियाज में ट्री कवर की बहुत ज्यादा जरूरत. ठीक है, तो उसको हम प्रायर बेसिस पे उसको हम फोकस करेंगे. ओके, सो द ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020, we actually the theme that nature and biodiversity also. So Javadekar launched the Nagar One or urban forest with 200 corporations and cities across India. So while urging the people to actively participate and increase the tree cover in their areas. So that is the important thing. So ये था environment day related. So next news is rare scorpion fish found in Gulf of Mannar. Okay, so some of the scorpion fish यहाँ पे find out हुए हैं. तो देखते हैं उसके regarding. Research at the Central Marine Fisheries Research Institute, that is CMFRI, have found a rare fish from Setu Karai coast in Gulf of Mannar seagrass ecosystem. Okay, so यहाँ से कुछ find out हुआ है. And band-tailed scorpion fish is well known for stinging venomous spines. So venomous उसके spines होते हैं. The fish is called scorpion fish because the spines contain neurotoxin venoms. Okay, so the fish has the ability to change color and blend with its surrounding and environment to escape from the predators and while preying. Okay, so exactly Gulf of Mannar regarding थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे वो find out हुआ है. So उसकी information भी यूपीएससी पूछ सकते हैं. तो Gulf of Mannar is a large shallow bay forming part of Lakshadweep Sea. ठीक है, so Lakshadweep Sea का extended part है and in the Indian Ocean. Okay, so that is the part of the Lakshadweep Sea in the Indian Ocean. So it lies between the west coast of Sri Lanka, means west coast of the Sri Lanka, and southern tip of India, southeastern, or we can say the southern tip of India in the Coromandel coast region, because Coromandel coast start from here, like Tamil Nadu, toward the Krishna river. So this part of the coastal region is known as the Coromandel coast. Okay, so the chain of low island and reef known as the Ram Setu, yes, or also known as the Adams Bridge, which includes the Mannar Island and separates the Gulf of Mannar from Palk Bay. So it is the Palk Bay, or we can say the Gulf of Mannar is separated by the Palk Bay, Palk State. Okay, and state means the narrow part of water body which connects two larger water bodies. Okay, so यहाँ पे साउथ में कौन सा होगा कि मोस्टली इंडियन ओशन या लक्षद्वीप सी, एंड यहाँ पे लार्जर सेकंड लार्जर पार्ट होगा बे ऑफ बंगाल. सो उसको ये स्टेट कनेक्ट करेगी, दैट इज पार्क स्टेट. ओके, सो द Malauthu Oya means Malauthu river of Sri Lanka and the estuaries of the Thambi-Barani river and Vaipar river of South India drained into Gulf of Mannar. So that is going to be important thing कि यहाँ पे कौन सी river एटलीस्ट यहाँ पे मर्ज होती है या उनके माउथ से. सो चलो श्रीलंका तो भी ठीक है कि श्रीलंका को नहीं पता है तो इट्स ओके श्रीलंका की रिवर, बट इंडिया की रिवर्स पता होनी चाहिए विच मर्ज इनटू द Gulf of Mannar, that is Thambi-Barani river, and second is the Vaipar river. Okay, so this region is important for also dugong, means sea cow found over here. So sea cow के लिए भी important है, and second important thing यहाँ पे कुछ pearl का production भी होता है तो उसके लिए भी important है. Then Gulf of Mannar is also the Marine National Park sanctuary, and Gulf of Mannar protected area of India consists of 21 small islets adjacent coral reefs in the Gulf of Mannar in Indian Ocean. So that is the important thing. So it lies 1 to 10 kilometers away from the east coast of Tamil Nadu and India, 160 kilometers between the Thoothukudi, Tuticorin and Dhanushkodi. Okay, so इसके बीच में ये part आता है, and it is the core area of the Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve. So it is the part of Marine Biosphere Reserve.
आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर, मतलब जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो उसमें से एक रहेगा गल्फ ऑफ मन्नार. So it is national park also, marine national park also, and second most important thing, it is, yes, it is biosphere reserve also. Okay, so it is the only marine biosphere reserve out of the 18. Okay, so the park has high diversity and plants etc. So that is the thing. So total biosphere reserve पे हम जाते हैं, तो total 18 biosphere reserve का ये कुछ part है. Okay, so यहाँ पे आपको total 18 biosphere reserves दिख रहे हैं, and उसमें से 11 जो है ना, तो वो कौन से रहेंगे, मैप होते हैं, मीन्स मैप एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है जिनको. So it is launched in 1972 under by the UNESCO. Man and Biosphere Reserve Program is an intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between the people and the environment. So that is the map, and map combines natural and social science, economics and education to improve human livelihood and the equitable sharing of the benefits and due to the and to the safeguard natural and manage ecosystem, thus promoting innovative approaches to the economic development and that are socially and culturally appropriate and environmentally sustainable. Okay, so that is the thing कि map sites only 11 है इंडिया में, so उसमें से एक है नीलगिरी, that is the first to be included as a map site. Okay, so that is going to be important, and ये next news में भी important होगा, so please remember that. and बाकी भी यहाँ पे कुछ list दिया है, तो उसमें से आपको यहाँ पे similarly आपको एक दिख जाएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार भी इसमें included है second नंबर पे. Okay, so please go through this. All biosphere reserve is an international designated by UNESCO. Okay, so that is going to be important. So map site इसमें कितने हैं total out of 11, that are the 11. Okay, so next news is, and most famous, one of the most famous news is killing gaja on the killing of an elephant in Kerala. ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस हुआ था, एंड ऐसी क्रूएल डेथ होना मतलब इंडिया में आज के डेट में, जबकि हमारे पास इतने सारे लॉज है एंड इतने मॉनिटरिंग लेवल पे कुछ लॉज है या फिर उसके मॉनिटरिंग एजेंसीज है, बॉडीज है, इंस्टीट्यूट्स है, एंड इवन दो सम ऑफ द गवर्नमेंट्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, सो स्टिल ऐसे कुछ इवेंट होता है. सो इट इज definitely shameful for the India also. So death of the pregnant elephant in Kerala after she ate an pineapple laden with firecrackers. Okay, so वही pregnant जो elephant है, तो फीमेल एलिफेंट है, तो उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम ट्रैप के कुछ मेथड्स होते हैं जो पोचर्स होते हैं उनके. सो दैट इज पाइनएप्पल व्हिच इज लैडन विद द firecrackers. Okay, the sequence of the event, the wild elephant had allegedly wandered out of the Silent Valley National Park in Palakkad in the search of the food. So ये exactly कहाँ पे हुआ है, तो Silent Valley National Park in Palakkad means जहाँ पे separate होता है जो continuous Western Ghat range continuous होती है up to the Nilgiri, and उसका separation, first separation हम major separation बोल सकते हैं, that is Palghat Gap or also known as the Palakkad Gap, and उसके बाद फिर next after the gap Annamalai start होता है, and then last is the cardamom. Okay, so ये कुछ part है उसका. When the animal alleged bit into the fruit stuffed with the firecracker and she was grievously injured, eventually leading to her death. Okay, so that is the food bomb. We can say the food bomb. It is considered to be the traditional hunting practice. These food bombs are mainly placed to the hunt and kill wild boars, and in the process, these bomb claims lives of other animals and even livestock, etc. Okay, so that is the thing. So ये ऐसे कुछ इवेंट हुआ था, यहाँ पे कुछ उसके इमेजेस है कि एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम एक्सेट्रा, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज दिख जाएगी. सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये ऑलवेज बहुत सालों से ये चलते आ रहा है. सो ये एक रीजन है हमारा कि हॉरिफाइंग रिमाइंडर ऑफ द राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल, and this is expected to grow as a human are entering areas meant for the wildlife and for commercial activities further diminishing their habitat. Okay, so exactly this was the news. So हम थोड़ा सा मूव करते हैं प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अगर ऐसे कुछ इवेंट हुआ है तो एग्जैक्टली लोकेशन अगर देखोगे तो केरला में आएगा, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क कुछ IUCN के कैटेगरी 2 में आता है नेशनल पार्क में, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन केरला and it is located in exactly in the Nilgiri Hills. Okay, so it is located in the Nilgiri Hills. So the national park is one of the last undistributed tract of southwestern Ghat mountain rain forest and tropical moist evergreen forest. So continuous with the proposed एक यहाँ पे इसके नॉर्थ में होगा, that is करीम पुल्जा नेशनल पार्क. यहाँ पे अगर नॉर्थ में देखा जाए तो to the north, and मुखुर्ती नेशनल पार्क to the northeast. तो इसके नॉर्थ में इसमें कौन सा है, मुखुर्ती नेशनल पार्क. ओके,
सो याद रखना है आपको ये, एंड इट इज द कोर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो ये सेम साइलेंट वैली नेशनल पार्क अगर आप देखोगे तो ये किसका पार्ट है? सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व देखो कभी भी लार्जर होते साइज में, एंड उसमें सम ऑफ द नेशनल पार्क हो सकते हैं या सेंचुरीज हो सकते हैं या उनके कुछ पार्ट हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व आल्सो होते हैं। सो यहाँ पे अगर देखोगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2007। सो इसको 2007 में वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया, तो उसमें भी किया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और वी कैन से द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, सो डिफरेंट यहाँ पे प्लांट्स है, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स रहेंगे या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे कि वो ऑलवेज उनका थ्रेट होगा इसके बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे कुछ थ्रेट यहाँ पे दिखेंगे। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क एग्जैक्टली कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो इट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन द मैप, एंड यहाँ पे मुखुर्ती दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के रीजन में स्प्रेड है। सम ऑफ द शोला फॉरेस्ट आर हियर ओवर हियर। ठीक है, सो ये कुछ पार्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क का, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली ये बड़ा होगा एंड उसमें भी कुछ पार्ट हो गए। सो जैसे कि हमारा लास्ट पॉइंट है, देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स द अरालम, मुदुमलाई, मुखुर्ती, नगरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 6 के आसपास यहाँ पे नेशनल पार्क है, एंड 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज वायनाड एंड सत्यमंगलम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से पार्ट आते हैं, बिकॉज इतनी कुछ यहाँ पे इवेंट हुआ है, ऐसा कुछ इवेंट हुआ है, क्रूएल इवेंट हुआ है, तो मे बी यूपीएससी का ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको इतने नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज 2 यहाँ पे मिल जाएगी। सो कुंती पूजा रिवर्स एग्जैक्टली साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अगर देखोगे तो the entire 50 kilometer of the Kunti Puja river spark from the north to south into the Bharat Puja river, means यहाँ से exactly Silent Valley National Park से Kunti Puja river flow होती है, and which is the tributary of the Bharat Puja river, and Bharat Puja is again जो केरला के 2 important river है, भरत पूजा एंड पेरियार रिवर, सो उसमें से एक आती है। ठीक है, इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर फॉर द केरला। सो मुदुगर, कुरुम्बार एंड इरुला ट्राइबल पीपल्स भी यहाँ पे लोकेटेड है, मुदुगर, कुरुम्बार एंड इरुला ट्राइबल पीपल। सो दोज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइबल एरियाज यहाँ पे। ओके, सो अट्टापेडी रिजर्व फॉरेस्ट भी यहाँ पे कुछ लोकेटेड है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो। साइलेंट वैली इज होम टू द लार्जेस्ट population of the lion tail macaw and endangered of the primate. So lion tail macaw का ये सबसे largest production यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में आपको दिख जाएगा। So those are the important factors about the Silent Valley National Park. So next news is the निसर्ग बैरस टुवर्ड द मुंबई। सो निसर्ग साइक्लोन हिट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग हमने एंटायर लेक्चर एक सिंगल यूट्यूब वीडियो क्रिएट किया है। सो आई होप यू हैव टू सी दोज वीडियो, बिकॉज उसमें क्लियर आइडिया आ जाएगा आपको। तो ऑन एंड अराउंड थर्ड जून को यहाँ पे हिट हुआ था सिमिलर ये निसर्ग साइक्लोन, तो उसके रिगार्डिंग हमने एंटायर न्यूज कवर किया था, जैसे कि अम्फान ऑन द अदर हैंड वो भी हमने देखा है कि वो कैसे सुपर साइक्लोन था ऑफ कैटेगरी 5 एंड दो इट हैड वीकन टू कैटेगरी 4 एक्सेट्रा। तो ये सब पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल स्किप दिस न्यूज, बिकॉज इसमें बस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है कि नेक्स्ट एंगल से कि बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली अरेबियन सी से कंपैरिजन में साइक्लोन्स ऑलवेज ज्यादा आते हैं, बट इन लास्ट 2-3 इयर्स अगर आप देखोगे, जैसे लास्ट ईयर आउट ऑफ 8 टोटल 8 साइक्लोन्स मींस 19 में टोटल 8 साइक्लोन्स आए थे, तो उसमें से 5 साइक्लोन वायु, हिक्का, क्यार, महापवन, सो ये कहाँ पे आए थे? अरेबियन सी में। सो अरेबियन सी में जो नंबर है साइक्लोन्स का वो अभी इंक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि इस साल पहला जो साइक्लोन आया था 2020 का, दैट वाज अम्फान, एंड वो आया था बे ऑफ बंगाल में, एंड सेकंड इज द निसर्ग, एंड व्हिच इज फॉर्म इन और व्हिच इज क्रिएटेड इन यस इन अरेबियन सी। ओके, so next is the monsoon bounty, means onset of monsoon in India. So heavy rains over the Kerala alone do not determine the onset of the monsoon. तो थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें यहाँ पे डिबेट लाइक कंडीशंस थी कि IMD का वेदर फोरकास्ट बोलता है कि सम ऑफ द यहाँ पे जो मानसून आया मीन्स विद द साइक्लोन मानसून आया था, बट वैसा नहीं था कि साइक्लोन का मानसून आ रहा है मीन्स नॉट नेसेसरी कि मानसून का अराइवल हुआ है। सो
that is the different definitions. उसके फिर definitions regarding कुछ चल रहा था कि IMD has clearly defines that criteria of declaring onset of monsoon. 8 of 14 designated meteorology stations in Kerala, Karnataka must register 2.5 mm rain for 2 consecutive days. So that is the definition कि only cyclone आया फिर उसके through rainfall है, it is not necessary. तो उसके कुछ अलग conditions है onset of monsoon के. So that is 8 of the 14 designated मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस पे रेनफॉल होना चाहिए एंड वो भी कंसेक्यूटिवली 2 days एंड इट मस्ट हैव टू रजिस्टर 2.5 mm रेन फॉर द 2 consecutive days. Okay, so there must be 30 to 40 km per hour westerlies winds, means the southwest monsoon winds, which generally came from the equator reaching India at a certain height. Okay, so ये भी एक second criteria important होगा and there must be certainly value of outwave long wave radiation. तो इसकी भी proper certain value होनी चाहिए, that is OLR की, outwave long wave radiation. Okay, so generally हम rainfall अगर देखा जाए तो if after May 10 60% of the 14 weather station, जैसे कि ये लोकेशन यहाँ पे मेंशन किए, so report rainfall of 2.5 mm or more for 2 consecutive days. The onset over Kerala will be declared on the second day. So exactly ये अगर क्वालिफाई होता है, मींस ये कंडीशंस, तभी जाके आपका क्या होगा, वहां पे मॉनसून अराइवल हुआ है या ऑनसेट हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, सो ये कुछ डेप्थ वगैरह दिए, लॉन्ग वेव्स एक्सेट्रा कुछ दिए, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे क्या कंडीशन से, कैसे कंडीशन से वो शो किया है, मींस 5th of May या 9th April, 23rd April, ऐसे कुछ डेट से कि जब क्रॉस इक्वेटोरियल विंड्स, ये न्यूट्रल कंडीशन थी, प्री मॉनसून शावर्स इस बार हुआ था. यस डेफिनेटली. सो पॉजिटिव, सीजनल लो नेगेटिव एंड एनसो स्टेटस मींस एल निनो सदर्न ऑसिलेशन इज न्यूट्रल, सो दैट इज द गुड फॉर इंडिया. अगर एल निनो कंडीशन पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव होगी तो निगेटिव आएगा. एंड बट इट इज न्यूट्रल मींस नॉर्मल ईयर ओवर देयर, सो एनसो स्टेटस अभी न्यूट्रल होगा. ठीक है, सो जेट स्ट्रीम वगैरह अगेन निगेटिव है. सो ये मॉनसून अराइवल के लिए गुड कंडीशन होती है अगर जेट स्ट्रीम निगेटिव होगी यहाँ पे. ठीक है, एसपीडब्ल्यूजे रिमूवल हुआ है तो it is good for India. So it is the negative. So it is good means arrival हो सकता है हमारे यहाँ. ठीक है, so weak monsoon होगा तो rainfall less than half the normal, and the normal monsoon rainfall halves to the less 1.5 time normal etc. ऐसे कुछ active vigorous monsoon के कुछ यहाँ पे mention किया है. So you please go to this. Okay, so SkyMet ये भी एक important institute है कि उन्होंने भी some of the monsoon के datas mention किए थे कि इस बार some areas में like northwest India में 96% विद द नॉर्मल एवरेज जो है तो उसका 96% रेनफॉल होगा. एंड इस बार रेनफॉल अच्छा होने वाला है, मींस 91% कुछ सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट इंडिया में 92%. सो दीज आर द गुड डेटास फॉर मॉनसून. ओके, सो ये स्काईमेट ने मेंशन किया था. सो स्काईमेट क्या है फिर कि स्काईमेट वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट एंड वेदर ग्राफिक्स टू द इंडियन मीडिया. इन 2003 में उसका फॉर्मुलेशन हुआ था बाय द जतिन सिंह. It is the private. Okay, so इसका founded by Jatin Singh in 2003 and इसका headquarter in Noida, India. So SkyMet Weather has announced that the southwest monsoon have arrived in Kerala. Okay, so उसने announce किया था that is ahead of its normal onset date in June 1. So SkyMet has announced that all the conditions such as rainfall, outwave, longwave, radiations हो गए या फिर value of wind speed etc. So already हमने जो 3 mention किए तो वो वहां पे वो डिक्लेयर करते हैं. सो नेक्स्ट न्यूज इज डिजास्टर डिस्प्लेस लैक्स स्टडी. सो कुछ एक रिपोर्ट आया था, दैट इज स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2020 इन फिगर रिपोर्ट. ओके, सो इट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स in environment and development sector. So the report is published by the CSE, means Center for Science and Environment. So CSE also published the environment magazine Down to Earth. So exactly इन्होंने देखो डाउन टू अर्थ मैगजीन में ही कुछ ऐसे इमेजेस दिया था, दैट इज कुछ पब्लिश किया था, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 रिपोर्ट. सो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसमें ही क्या उन्होंने क्या कि डिजास्टर कंटिन्यूसली जो होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए तो उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस माइग्रेशन बोल सकते हैं हम, शॉर्ट टाइम होगा या लॉन्ग टाइम के लिए. सो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत ही हायर नंबर्स पे. So let's see, the report cover forest, okay, wildlife, agriculture, rural development, water, sanitation, climate change related aspects, etc. Okay, so migrant had moved for employment purpose, mostly from rural to urban. So ये भी उन्होंने कुछ mention किया है. Then उसमें exactly कुछ highlighted points क्या है देखते हैं. So India had 1 in 5
of all internal displacement caused by the disaster. So total 5 में से एक आदमी ऐसा होगा कि उसने because of disaster क्या किया है, migrate किया है in 2019. So mostly caused by the floods. So major कौन से cause है? Flood एक cause हो सकता है, then cyclone and droughts. So these are the major factors which are leading to the displacement. Okay, so there were more than 50 lakh internal displacement in India last year, the highest in the world. So okay, so ये बहुत important हो सकता है. ये report में बताया गया है कि अभी तक मतलब 50 लाख almost 50 lakh internal displacement हुए हैं इंडिया में means 2019 में, and it is highest in the world. This refers to the number of movement, not people as individual can be displaced several times. मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें बस एक एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे मूवमेंट्स कैच कर रहे हैं, नॉट द पीपल, मतलब एग्जैक्टली वो कंप्लीटली डिस्प्लेस हुए या पार्शियली हुए, वो उसमें काउंट नहीं होगा. ठीक है. So the compilation also offers a snapshot of data, forest, water, waste, air, land, wildlife and other natural resources. So already यहाँ पे एक देखो उनके फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे कुछ आपको डेटास दिए, मींस एग्जैक्टली किसका कंपाइलेशन होगा इसमें. It's like an index. Okay, so it notes that there are 747 more tigers in 2018 and tiger related भी कुछ data है, and forest cover has shrunk in 38% of the districts, means total 38% districts में forest cover कम हुआ है, and 5 out of 21 rivers basin are now in the state of absolute water scarcity. ठीक है, so ये कुछ numbers है and ये important हो गए. So you have to go through this state of India's environment 2020 report. Okay, so ये कौन publish करता है, ये may be important हो सकता है, that is published by the CSE, and उसका मतलब किसमें publish होता है, so it is in Down to Earth. ठीक है, CSE also publishes the environment magazine Down to Earth. Okay, so the next news is, at the largest land port in the country, no sign yet of unlocking trade. So due to lockdown etc conditions, so exactly यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया का एक सबसे important land port है and largest land port है, तो वो देखते कहाँ पे. So India's custom port Petrapol in West Bengal on the India-Bangladesh border account for majority of the bilateral trade between India and Bangladesh. So the trade happens to the Petrapol India, Benapol Bangladesh. Okay, so ये important है कि in between कहाँ पे Petrapol and Benapol. So Petrapol ये India toward India side रहता है and Benapol आता है बांग्लादेश. तो यहाँ पे connecting continuously trade चलता है within this port. Okay, and ये obviously मतलब Bay of Bengal में या फिर on the banks of गंगा and ब्रह्मपुत्र उनके माउथ पे या सुंदरबन रीजन्स में ही होगा ये. It is the largest international land port in India. So Petrapol is the Indian side of the Petrapol-Benapol border checkpoint between the India and Benapol of Bangladesh on the Bangladesh-Indian border near Bongaon in north 24 Pargana district of West Bengal. So Petrapol border is the only land port in the South Bengal. So it is also the largest land custom station in Asia. So ठीक है, यहाँ पे कुछ connecting point भी है रोड के. So that is now National Highway 112 और earlier National Highway 35. यहाँ पे कोई ट्रेन भी यहाँ से फ्लो होती है, that is बंधन एक्सप्रेस, and जो कि वीकली एक ही बार मीन्स थर्सडे को बोथ साइड से रन होती है. So that is the important thing about the Petrapol. So यहाँ पे देखो Petrapol यहाँ पे located exactly on the borders of India and Bangladesh. Okay, so poaching doubled during the lockdown, says Wildlife Trade Monitoring Group. So ये actually traffic का कुछ report था, Indian wildlife amidst COVID-19 crisis, and analysis of status of poaching and illegal wildlife trade report by Traffic, a leading wildlife trading monitoring network. तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में लॉकडाउन में ऑलमोस्ट डबल हुआ है पोचिंग. ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे हुआ है या किसके रिगार्डिंग हुआ है. सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. द रिपोर्ट हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पोचिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द lockdown. Almost report notes that a rise in reported poaching incidents from the 35 to 88. Means उन्होंने before lockdown 6 weeks consider किया and after lockdown 6 weeks या during lockdown 6 weeks is कंसिडर करके कुछ डेटा निकाले. तो उसमें 35 थे, तो अभी कितना 88 पे एक्सटेंड हो रहे हैं. मींस इतना नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. द बिगेस्ट इंक्रीज इन रिपोर्टेड पोचिंग वाज रिलेटेड टू द एंगुलेट्स. तो ये क्या होता है हम आगे देखते हैं थोड़ा सा. सो वेयर the percentage jump from the 24 to 44%, means directly double हुआ है. So ungulate species are targeted mainly for the meat, for self consumption or for local trade. ठीक है, so ये इसके लिए मेजरली होता है. अब ungulated means क्या होता है कि like these fawn या फिर we can say are any member of a diverse
phyletic group or primarily large mammals, or we can say the large mammal with hooves. Okay, and these includes odd-toed ungulated such as horse, rhinoceros, tapirs, even-toed ungulated such as cattle, pigs, giraffes, camels, deer, and hippopotamus. So as well as सब ungulates में कौन आता है, तो elephant आते हैं. ठीक है, so these are the ungulated, means इनके नंबर में डबल इंक्रीज हुआ है. So the second जिसका सबसे ज्यादा पोचिंग हुआ है, so that is the small mammals including hares, porcupines, then pangolins also there, giant squirrels, civets, monkey, and smaller wildcats. So interestingly, there was a slight decrease in the incidence of bird-related seizures. Means bird-related जो होता है, या फिर turtles हो गए, freshwater turtles are there, tortoise are there. So with almost no seizure of this species during the period. So ये कुछ अलग सा पॉइंट है कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ, और we can say no report is mentioned of it. ठीक है, या फिर कोई ऐसी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ रिपोर्ट. सो ये दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ और इंक्रीज थ्रेट्स रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पे दिया है. सो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल पॉइंट्स, पैंगोलिन्स एक्सेट्रा. तो ट्रैफिक में देखना है आपको कि ट्रैफिक एग्जैक्टली क्या है. ट्रैफिक इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, इज द लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली ऑन द trade of wild animals and plants in the context of both biodiversity and sustainable development. So, which is founded in 1979. Traffic's headquarters are located in Cambridge, UK. ठीक है, so इसका headquarter UK में and founded in 1979. And इसका formulation कब हुआ? It was founded in 1976 as a strategic alliance of the WWF, means Worldwide Fund for Nature, and the IUCN, means International Union for Conservation of Nature. तो ये दोनों के कोलैबोरेशन में ये स्टार्ट हुआ है, दैट इज ट्रैफिक. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट ट्रैफिक. ओके, सो उसका हेडक्वार्टर वगैरह इंपॉर्टेंट होगा, एंड उनके प्रोडक्ट्स लाइक ट्रैफिक बुलेटिन, वेरियस रिपोर्ट्स है उनके, तो प्लीज गो थ्रू दोस इनिशिएटिव्स और वी कैन से द रिपोर्ट्स. ओके, सो उनके कुछ और भी स्पीसीज रिलेटेड वर्क है, या फिर ट्रैफिक ऑनगोइंग वर्क ऑन पर्टिकुलर स्पीसीज इंक्लूड्स एलिफेंट्स एंड आइवरी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे फैक्टर. देन राइनो कंजर्वेशन है, देन लेपर्ड कंजर्वेशन आएगा, then helm-headed hornbills and pangolins. It is the most poached mammal in the world. So pangolin भी important है. It is most poached mammal in the world and are illegally hunted for their hard keratin scale with an estimated 1 million poached in the last decade. Traffic has published reports on the trafficking species and inform customs official how to catch illegal shipments. So ये एक important होगा कि pangolins etc. इनके कैसे poaching हो रहे. So next news is India Bhutan Inc. MOU, Memorandum of Understanding for Environment Cooperation. ठीक है, सो एनवायरमेंट कोऑपरेशन रिलेटेड कुछ लास्ट जैसे 10 इयर्स के लिए था 13, मींस प्रीवियस वन अगर आप देखोगे तो 13, बट इट एक्सपायर्ड इन 16. सो ऐसे कुछ भूटान के साथ जो अभी 16 में एक्सपायर हो रहा है. सो अभी नेक्स्ट रिमेनिंग 10 इयर्स के लिए कुछ MOU साइन किए, कि उसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट जो भी म्यूचुअल बेनिफिट्स हो गए, टेकिंग अकाउंट इन द एप्लीकेबल लॉज, कि जो भी बेनिफिट्स हमको एनवायरनमेंट से मिलते हैं तो उनका वाइजली यूज करके उनको नेचुरल रिसोर्स हम एनहांस करेंगे, या उनका मैनेजमेंट करेंगे, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए, एंड उनका वाइजली या सस्टेनेबल यूज फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स इसमें मोस्टली मेंशन, एंड इट विल कवर एयर, वाटर, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, climate change, and other areas will remain in force for 10 years from the date of signing. Okay, so that is the thing. Next news is oil spill in Russia and Arctic region. ठीक है, so ये रशिया में कुछ ऑयल स्पिल हुआ था. So Russian President Vladimir Putin has declared a state emergency after 20,000 tons of diesel oil leaked into the Ambaranya river within the Arctic circles. ठीक है, so थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, but still याद रखना आपको अंबारण्या रिवर. ठीक है, अंबारण्या रिवर, एंड इट इज अ रिवर इन साइबेरिया व्हिच फ्लोज इन नॉर्दर्ली डायरेक्शन इनटू द लेक पायासिनो. ठीक है, सो लेक पायासिनो में ये मर्ज होती है जाके. सो यहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज है इन द नोरिल्स्क, ऐसे कुछ रीजन है वहां पे, तो माइनिंग इंडस्ट्री है, तो वहां पे कुछ डीजल लीक हुआ था, एंड डीजल स्पिल हुआ है या फिर ऑयल स्पिल हुआ है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये रिवर पोल्यूटेड हुई है. सो यू हैव टू सी द लोकेशन एग्जैक्टली, कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, एंड ये रिवर कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो फ्यूल टैंक में एंड एट पावर प्लांट नियर द साइबेरियन सिटी ऑफ नोरिल्स्क, यहाँ पे कोलैप्स हुआ है. तो ये सिटी का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
तो ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके रिलेटेड कुछ मेजर्स लिए गए। मीन्स बाद में कुछ दिनों बाद अगर देखोगे तो ये एंटायरली देखो पूरी रिवर यहाँ पे कंटेमिनेट हुई है, ठीक है, तो ऑयल स्प्रेड हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बूम ऑब्स्टेकल्स वगैरह स्प्रेड किए थे कि एटलीस्ट यहाँ पे कुछ बूम मीन्स एल्गल ब्लूम्स टाइप्स होते हैं, अगर ये स्प्रेड करते तो मे बी ये ऑयल स्पिल स्टॉप हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर सम मेनी मेथड्स टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑयल स्पिल। सो ये कुछ मेथड्स है, सो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल दी मेथड्स। ये हम पीपीटी जो प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको उसमें से पढ़ना है, ओके। सो अंबरेला रिवर के बारे में देखते हैं। सो टुंड्रा थोड़े से टाइप ऑफ क्लाइमेट में आएगा ये, एंड उसका एग्जैक्टली सोर्स आप देखोगे तो इसका सोर्स जनरली नॉर्मल स्मॉल रीजन्स पे मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स की वजह से होता है, एंड इट इज द साइबेरिया रीजन इन द which flows in the lake Payasino, ठीक है। सो ऑन लिविंग लेक Payasino waters emerge as the river Payasina, ठीक है। it shares common delta with the river Norilskaya, तो नोरिल्स्काया के साथ ही ये डेल्टा शेयर करती है, उतना एक आपको याद रखना है, ठीक है। एंड मोस्टली रिवर फेड बाय रेन एंड मेल्ट वाटर एक्सेट्रा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। सो ये भी आपको देखना है। इन May 2020 20,000 tons of the diesel fuel spilled into the river from the power plant, and with the 12-kilometer stretch of the river seriously affected, and Russia's President Vladimir Putin declared a state emergency. So all this is about the news, so please go through these news exactly उसका प्रोग्रेशन कैसा है, एंड अभी कैसा होता है कि ये रिवर जब फ्लो होती है तब जनरली स्मॉल स्ट्रीम जैसे फ्लो होती है अमरण्य रिवर, एंड जब लेक पयासिनो को मिलती है तो लेक पयासिनो से और एक रिवर यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू होती है, दैट इज पयासिना रिवर, एंड कारासी में मर्ज होती है। सो कारासी इज द पार्ट ऑफ द आर्टिक सर्कल, या आर्टिक सी का सब सी बोल सकते हैं हम जिसको, दैट इज द कारासी। तो ये कुछ फ्लो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो इट फाइनली मर्ज विद द कारासी, ओके। So locust control, government ignoring non-chemical measures. So यहाँ पे कैसे कि डिफरेंटली रिपोर्ट्स आते हैं, या जैसे राजेंद्र चौधरी एडवाइजर कुदरती खेती अभियान हरियाणा हैज एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ द एरिया स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। तो डिफरेंट पेस्टिसाइड जितना हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे तो उनके डिफरेंट टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, एंड वो टॉक्सिक केमिकल्स एक्सेट्रा, तो उनके डिफरेंट इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे hazardous for long life chemical would pollute the hazard water and soil, even on the different human health lung diseases की इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो ये इम्पैक्ट को हम साइड लाइन नहीं कर सकते, सो पॉइजनस इम्पैक्ट इसके होते हैं, सो वो भी हमको कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली चाइना ने जो पाकिस्तान में स्प्रेड हुआ था उसके रिगार्डिंग एक डिफरेंट एक अलग से मेथड यूज किया था, दैट इज एसोसिएटेड एज द डक आर्मी, लाइक कुछ ऐसे किया था। सो दैट इज द डक आर्मी, जैसे कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में आता है ये। सो इट इज द नॉन केमिकल मेथड वुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव अप्रोच टू कंट्रोल लोकस विदाउट सीरियस साइड इफेक्ट। सो ये जैसे चाइना's डिप्लॉयमेंट ऑफ द डक आर्मी इज नाउ becoming a diplomatic policy, China had even sent its duck army to Pakistan to deal with the locust menace, ठीक है। use of biopesticide provide for an effective solution the oil formation of metarhizium Ancipalae spores provides an effective control measures for the locust, and this can control up to 70 to 90% its locust within the 14 to 20 days. So ऐसे कुछ different methods है। so spraying murs etc. so ये different methods है, ये चाइना का कुछ different method है, आपको यहाँ पे इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। so these are the different pest management strategies. तो कल्चरल होगा तो जैसे प्लांट चॉइसेस, मल्चिंग, टाइम ऑफ प्लांटिंग, बायोकेमिकल होगा या बायोलॉजिकल होगा तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, मैकेनिकल है प्रूनिंग, कल्टीवेशन एक्सेट्रा, एंड केमिकल, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऐसे कुछ यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेरोटोनिन एक न्यूज में आया था कि सेरोटोनिन ट्रिगर्स डेजर्ट लोकस्ट स्वैम्स। जैसे यहाँ पे कुछ उनके जो स्टिंगल्स होते हैं, या फिर जैसे हम ये पार्ट जो बोलते हैं यहाँ पे स्मॉलर उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे उनका कुछ सिक्रीशन होता है। जैसे कि ये नॉर्मली तो सोलेटरी होते हैं कि अलग से रहते ही है जो लोकस्ट होते हैं, बट ऐसे टाइम में ये एक साथ ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ से कुछ केमिकल, सेरोटोनिन केमिकल जो एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोकस्ट स्वैम्प्स में कन्वर्ट होते हैं, मींस ये एक साथ आने लगते हैं। सो देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या न्यूज है। द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैंडल्स द लोकस्ट इन्वेंशन इन इंडिया, ठीक है। द फूड FAO पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन बेस्ड इन रोम इटली coordinates and helps nations with the advice and funds in combating the locust invasion, okay। so ICRISAT also is there,
and it is the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics, is based in the Hyderabad. So इनके भी कुछ यहाँ पे रोल होता है, एंड डिफरेंट ये स्प्रे भी होता है, जैसे मैलेथियन इज एन इंसेक्टिसाइड स्प्रेड ऑन द लोकस फॉर्म, तो ये भी आपको देखना है बिकॉज ऐसे केमिकल्स पे बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं. तो सेरोटोनिन इज अ केमिकल दैट हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी आल्सो, एंड इट इज समटाइम्स कॉल्ड द हैप्पी केमिकल because it contributes to well-being and happiness. The scientific name of the serotonin is 5-hydroxytryptamine or 5-HT. It is mainly found in the brain, pulse or blood platelets. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप थोड़ा सा बायोलॉजिकल एंगल से इसको और भी आपको पढ़ना है. ठीक है, सेरोटोनिन. ठीक है, तो ये मोस्टली क्वेश्चन बन सकते हैं. So tree transplantation policy may get cabinet nod soon. Okay. So Delhi government tree plants, Delhi government related here. So under the tree transplantation policy 2020 for development of project, 80% of the trees affected by the development activities at a particular site have to be transplanted. तो जो भी साइट्स यहाँ पे सैंक्शन हुए डिफरेंट मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले, तो ये एरियाज में अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स एरियाज रहेगा, तो यहाँ पे 80% अगर लॉस हुआ है, अगर 80% लॉस हुआ है, तो ऐसे जो भी साइट्स रह गए तो वहां पे प्रायोरिटी बेसिस पे प्लांटेशन करना जरूरी है. सो ये इंपॉर्टेंट होगा. सो एग्जिस्टिंग पॉलिसी planting 10 saplings for each tree being felled will continue, and also 10 sapling will have to be planted for each tree. मींस यहाँ पे 80% में जो भी फॉरेस्ट था, अगर 80% फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस हुआ है, तो वो फॉरेस्ट 80% जो भी लॉस हुआ है, तो हर एक प्लांट के रिप्लेसमेंट में आपको एवरी प्लांट रिप्लेसमेंट 10 यहाँ पे सैपलिंग करना पड़ेगा. मींस एवरी प्लांट को 10 सैपलिंग्स. ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे पॉलिसीज है, एंड वही दिल्ली गवर्नमेंट अभी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसीज में अगेन उन्होंने मेंशन किया, एंड दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट. ओके, सो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने ट्रांसप्लांटेशन होने वाले हैं, एंड उसके रिगार्डिंग सम ऑफ द फंडिंग भी होने वाली है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द एनजीटी होल्ड्स एलजी पॉलीमर्स इंडिया लाइबल फॉर द लॉस. तो ऑलरेडी ये न्यूज हमने एंटायरली कवर किया है. सो बस इतना याद रखना है कि एनजीटी सेड दैट 50 करोड़ इन कंपेंसेशन डिपॉजिटेड, एक्चुअली 50 करोड़ इसमें एलजी कंपनी ने यहाँ पे डिपॉजिट किया है. सो इट विल बी स्पेंट ऑन द रिस्टोरेशन. ठीक है, सो इट वुड बी स्पेंट ऑन द रिस्टोरेशन. तो ये न्यूज ऑलरेडी हमने कुछ हमारे प्रीवियस मे के पार्ट 1 में कवर किया है. सो प्लीज वहां से आपको ये न्यूज एंटायरली इन डिटेल मिल जाएगी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, एंड हमने आज पार्ट 1 कवर किया है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर some next week news, means 7 to 8 days news हम उसमें कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.